مجلس ریاض. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس وقت کی سرخیاں. اکبر الدین اویسی کی کیئر ہاسپٹل میں سرجری مکمل, متاثرہ گردے کا آپریشن کامیاب. کئی قائدین اور علماء ہاسپٹل پہنچ گئے, قائد مجلس کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کی. ہاسپٹل کے روبرو چاہنے والوں کا ہجوم, محبان مجلس کے نعرے, شہر میں آج بھی رضاکارانہ بند. اور بیرسٹر اسد الدین اویسی مجلس ارکان مقننہ کیئر ہاسپٹل میں ہی کیمپ کیے ہوئے ہیں. قائد مجلس کی صحت یابی کے لیے کئی مقامات پر دعاؤں کا اہتمام. اب دیکھتے ہیں خبریں تفصیل سے. مجلس اتحاد المسلمین کے مجلس اتحاد المسلمین کے نوجوان اور محبوب قائد اکبر الدین اویسی کا کیئر ہاسپٹل بنجارہ ہلز میں علاج جاری ہے. قائد مجلس کی ایک کڈنی گولی لگنے سے متاثر ہو گئی ہے. متاثرہ کڈنی کا ڈاکٹرز نے کامیاب آپریشن کیا. آج صبح 10 بجے کیئر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے اکبر اویسی کی صحت سے متعلق ایک میڈیکل بلیٹن جاری کیا, جس کے مطابق قائد مجلس کی حالت نازک ہے کیونکہ ان کی ایک کڈنی کام نہیں کر رہی ہے. اکبر اویسی کو مسلسل ڈائلائسس دیا جا رہا ہے. ڈاکٹرز کے مطابق گولی لگنے سے گردہ بری طرح متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ قائد مجلس کے جسم سے کافی خون بہہ گیا ہے. کیئر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ قائد مجلس کے دیگر اہم اعضاء برابر کام کر رہے ہیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان کی ایک کڈنی شدید متاثر ہوئی ہے جس کا کامیاب آپریشن کیا گیا. قائد مجلس کو مسلسل انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا ہے. سینکڑوں افراد کیئر ہاسپٹل پہنچ کر اکبر الدین اویسی کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں. قائد مجلس کے چاہنے والوں نے ہاسپٹل کے روبرو جمع ہو کر ان کی تائید میں نعرے لگائے. آج بھی کئی لیڈرز نے کیئر ہاسپٹل پہنچ کر قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کی. سابق چیف منسٹر کے روشیا نے قائد مجلس پر حملے کی شدید مذمت کی. انہوں نے اکبر الدین اویسی کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کڑپا ضمنی انتخابات میں انتخابی مہم میں مصروف وائی ایس جگن موہن ریڈی نے بھی آج صبح ہاسپٹل پہنچ کر بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور قائد مجلس کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کی. وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی, ریاستی وزیر شنکر راؤ اور کئی علماء و مشائخین نے بھی آج ہاسپٹل پہنچ کر قائد مجلس کی عیادت کی اور بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے قائد مجلس کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کی. قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے دعائیں کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ حرم شریف میں مقامی اور عمرے کے مقصد سے گئے ہوئے حیدرآبادی مسلمانوں نے اکبر اویسی کی جلد اور کامل صحت یابی کے لیے دعا کی. اس کے علاوہ امریکہ, لندن, آسٹریلیا اور خلیجی ممالک میں رہنے والے تارکین وطن نے بھی قائد مجلس سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. مجلس کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں آیت کریمہ کی محفل منعقد ہوئی جس کی نگرانی مولانا خواجہ شریف شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ نے کی. شیخ الحدیث نے قائد مجلس کی جلد صحت یابی کے لیے رخت انگیز دعا کی.
नाज़रीन, जामिया निज़ामिया में भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। केयर हॉस्पिटल में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी चीफ एडिटर रोजनामा एतमाद केयर हॉस्पिटल में ही कैंप किए हुए हैं। ओवैसी खानदान ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत और आफियत के लिए दुआ करें। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जामिया निज़ामिया में भी कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। पुराने शहर में हालात इस्तराब आमेज है। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। मजलिस की जानिब से कोई बंद का ऐलान नहीं किया गया, इसके बावजूद बाजार बंद है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे एस.एम. रफ़ी हॉस्पिटल से मौजूद हैं, जो सुबह से केयर हॉस्पिटल में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुतालिक उनके पास क्या मालूमात है। हेलो। हाँ रफ़ी, हमें बताइए कि इस वक्त कायदे मजलिस की सेहत कैसी है। हाँ रफ़ी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। बताइए कि कायदे मजलिस का जो ऑपरेशन हुआ है वो कैसा रहा और इस वक्त हॉस्पिटल में वहाँ कौन कौन है और अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत कैसी है। हाँ अल्लाह का शुक्रिया है। अच्छी खुशखबरी सुनने में यही है कि अभी भी डॉक्टर बाहर निकले हैं। तस्वीर करो यहाँ पर सवेरे जब राजपुर ओवैसी के मासूम की गई तो डॉक्टरों ने उनके गुर्दे के साथ उसको फिक्रमंदी जाहिर की थी नसीर जी। उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी सर्जरी की जाए या फिर वैसे ही उनको दवा के जरिए कुछ उनका इलाज किया जाए, लेकिन डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर्स की टीम ने एक बेहतर कामयाब इलाज करते हुए उनकी को दूर किया है नसीर। और डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन बावजूद उसके कि उनको बेहोशी की हालत से होश में आने नहीं देना चाहिए और उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहिए नसीर जी। सर्जरी से मुतालिक आपने बात कही, सुबह जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें बात कही गई थी कि उनकी एक किडनी काम नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन सालों से सर्जन ने ये बात की थी, फिक्रमंदी जाहिर की थी कि ये बुलेट के रिएक्शन की वजह से बुलेट जो 2-3 घंटे जो उनके स्टमक में रही थी उसके बाद में उसका रिएक्शन हुआ था, इंटेस्टाइन को और उनके किडनी को उसका इफेक्ट हुआ था, तो उससे गुर्दा काम नहीं कर रहा है, ऐसा करके उन्होंने फिक्रमंदी जाहिर की थी नसीर। लेकिन अल्लाह का शुक्रिया है कि एक बेहतरीन डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए वो फिक्र को दूर किया है। रफ़ी, हम ये देख रहे हैं कि सुबह से कई कायदीन उलमा मशाइखीन हॉस्पिटल पहुंचकर कायदे मजलिस की सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस वक्त हॉस्पिटल में कौन कौन है। अभी तो चीफ मिनिस्टर आके यहाँ पर आकर 5 मिनट हुआ है। चीफ मिनिस्टर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर हमारे अरकान असेंबली मजलिस के और जयसुरा कई अरकान असेंबली और चीफ मिनिस्टर से कामयाब ऑपरेशन के बाद बात कर रहे हैं। और अभी चीफ मिनिस्टर ने भी इत्मीनान जाहिर की कि डॉक्टरों ने और कामयाब ऑपरेशन उन्होंने भी नेक कामों का इजहार किया। इस असना में सदर मजलिस ने मीडिया से या आप लोगों से बात की है। मीडिया से तो बैरिस्टर ओवैसी ने बात नहीं की, लेकिन जैसा हमसे बात हो रही है लगातार, वो ऑपरेशन थिएटर में खासकर मेरे से जो बात हो रही है तो वो वैसे थोड़ा फिक्रमंद जरूर थे, लेकिन अभी वो मुतमईन है कि डॉक्टरों ने इतना अच्छा ऑपरेशन किया है। अभी उनकी जो लेफ्ट हैंड पे हाथ पे जो चाकू के जो जख्म है उसकी सर्जरी करने की बात की गई है, प्लास्टिक सर्जरी करने की बात की गई है और वो सर्जरी को डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि उसको बाद में कर सकते हैं, लेकिन उनके एक लार्ज इंटेस्टाइन है ओवैसी का जो थोड़े से रिएक्शन से मुतासिर हुआ है और डॉक्टरों ने ये भरोसा दिया है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 8-10 दिन में रिकवर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी फिक्रमंदी ये थी कि यहाँ पर जो गुर्दा होने की उसके साथ तो उसको कामयाब ऑपरेशन करेंगे, वो बहुत बड़े मसले को बहुत बड़े खतरे को हल कर गया है यहाँ पर। कायदीन और अहम शख्सियतों के अलावा हमारे पास इस वक्त जो फोटेज है उसमें हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर काफी भीड़ और हुजूम है जो कायदे मजलिस की ताईद में नारे लगा रहा है। कहीं से ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि हम भी यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारे को भी फोन आ रहे हैं और लगातार पब्लिक जाकर ये गम गुस्से का इजहार कर रही है कि भाई यहाँ अकबर ओवैसी को कुछ हो गया है या फिर गैर मुतबर इत्तलात ऐसी फैलाई जा रही है
चंद लोगों की जांच में हो सकता है कौन है, और ये पता नहीं कि कौन फैला रहा है, लेकिन ऐसी खबरों के बाद यहाँ पर एकदम हुजूम उमड़ रहा है और यहाँ पर गम गुस्से का इजहार करते हुए नारेबाजी कर रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। नसीर रफी, आप वहां पर बने रहिए, हम वक्फा ब वक्फा आपसे रब्त करते रहेंगे और आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे। ये थे हमारे नुमाइंदे सिम रफी जो इस वक्त हमें ताज़ा हालात से वाकिफ करवा रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों का हुजूम है जो अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुताल्लिक मुतफक्किर है। हमारे नुमाइंदे ने यह भी बताया कि गोशे की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुताल्लिक जो अपडेट हमारे पास है हमने आपको बताया है। और एक बार हम आपको ये बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी के गुर्दे की कामयाब सर्जरी की गई है और इस वक्त वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है और डॉक्टर्स के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे नुमाइंदे ने और दूसरी इत्तलात दी है, जैसे कि उनके हाथ का जख्म, हाथ पर हम हमारे नाज़रीन को बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ पर मुसलसिल 25 से ज़ायद हमलावरों ने वार किए थे, जिसकी वजह से उनका हाथ शदीद मुतासिर हुआ है और उनके हाथ से मुतालिक डॉक्टर्स का ये कहना है कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी जरूरी है और ये प्लास्टिक सर्जरी थोड़े दिन बाद भी की जा सकती है। फिलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी अंडर ऑब्जर्वेशन में है और डॉक्टर्स अभी सर्जरी कर हॉस्पिटल में बाहर निकले हैं। हॉस्पिटल में सदर मजलिस के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मखनना वहीं पर है जो अपने महबूब कायद की सेहत से मुताल्लिक मुतफक्किर जरूर है, लेकिन उनमें हौसला भी है। आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी भी हॉस्पिटल पहुंचे। उनके हमरा मौलाना जाफर पाशा सानी भी हैं जिन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। हॉस्पिटल के बाहर का हुजूम भी आप देख सकते हैं। लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम लिए हुए कायदे मजलिस की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त करने के लिए वहाँ पर जमा है। पुलिस भी देखी जा सकती है वहाँ पर। इसके अलावा शहर के कई मुकामात पर भी लोग जमा होकर कायदे मजलिस के लिए दुआएं करते नजर आए और कई मुकामात पर आज रज़ाकाराना तौर पर बंदी मनाया गया। नाज़रीन, आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। अकबरुद्दीन ओवैसी की केयर हॉस्पिटल में सर्जरी मुकम्मल, मुतासिरा गुर्दे का ऑपरेशन